ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شریعت کے آئینے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے شرعی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، کنفیوژن ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ کرمک اللہ۔ اور مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ پروگرام کے حوالے سے آپ تمہیدی کلمات بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اسباب پر رکھا ہے۔ یہاں سورج سے روشنی ہوتی ہے اور پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، چاند کی روشنی چمکتی ہے، تارے جھل ملاتے ہیں، اس طرح رات کے حصے میں بھی روشنی کا سامان ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسانی زندگی میں، سماج میں، معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد دوسروں پر ظلم کریں۔ اسلام نے ایسے موقع پر ہم کو ہدایت دی ہے کہ جہاں تک ہو سکے درگزر کریں، عفو سے کام لیں اور پھر غیظ و غضب میں آنے کے بجائے ٹھنڈک کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ اور اگر مسئلہ حد سے تجاوز کر جائے اور درگزر کرنے کے باوجود وہ مسئلہ تھمنے نہ پا رہا ہو تو پھر اسلام نے دفاع کی بھی اجازت دی ہے کہ انسان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دفاع کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام نے انسان کی زندگی کے سارے شعبوں میں رہبری و رہنمائی فرمائی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک بنگلور سے بات کر رہا ہوں، محمد فضل۔ محمد فضل صاحب جی سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے، آج شادی تھی ہمارے بھیا کی۔ بھیا کی بھائی کی شادی؟ بھیا کی شادی تھی آج؟ ہاں آج۔ جی آپ کا کل آ کر رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ اچھا، لڑکی والے آئے اور رشتہ توڑ کر چلے گئے؟ ہاں، لڑکے والے آ کر غصے سے لڑ کر جھگڑا کر کر رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ کچھ حضرت سے وظیفہ بتائیے۔ نہیں وجہ کیا تھی رشتہ توڑنے کی؟ وجہ کیا تھی؟ جی بتائیے۔ وجہ معلوم نہیں، اچھا تھا، جی ہوتے رہتے، آ کر وہ غصے سے آ کر لڑائی کر کر رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ پورے گھر پر سب لوگ پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ رہنمائی چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ بدر سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے مجمر پونچھ سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ مجھے جاننا ہے کہ کیا ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ مجھے جاننا کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ایک طلاق دی یا ایک ساتھ ایک سانس میں 3 طلاقیں یا 100 طلاقیں سے بول دی تو اس سے 3 طلاقیں کچھ کہتے نہیں ہوتی، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ ایک ساتھ اگر اسے طلاق 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 کہا جائے یا کچھ ایسے لفظ کنایہ یوز کیے جائے اس سے طلاق ہو جائے؟ ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں چوڑیاں پہنتی ہیں نا پیتل کی، ان سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شکیل علی گڑھ سے بول رہی ہوں۔ جی ہاں، پیتل کی چوڑیوں سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور خواتینوں کو اسلام میں پردے کا کیا حقوق ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ اور بی بی فاطمہ کو جہیز میں
क्या क्या दिया था। वो बीबी फातिमा है, जैसे आयशा है, ये क्या क्या चीज पहना करती हैं, कान नाक इनके भी छिदे हुए थे या नहीं। ये 2-3 सवाल है मेरे, ये बताना जरा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अलीगढ़ से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जनाब मैं श्रीनगर कश्मीर से। सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि जनाब मैंने काबा शरीफ में देखा जब वहाँ जनाजा अदा करते हैं तो सलाम एक ही तरफ फेरते हैं। दूसरी बात यह है कि नमाज पढ़कर वहाँ से लोग निकलते हैं खाने काबा में। जी चलिए समझ गए। समझ गए जब मुफ्ती साहब, जनाजा जी। अदा किया जाता है तो वहाँ पे एक ही तरफ सलाम फेरते हैं। जी दूसरा मसला है कि फर्ज अदा करते ही लोग निकल जाते हैं। ठीक, इसमें रहबरी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए श्रीनगर से। जी मुफ्ती साहब, जी जी कर्नाटक बिदर से मोहम्मद फजल साहब ने सवाल किया था कि उनके आज भाई की शादी थी लेकिन रिश्ता टूट गया, लड़की वाले आए और उन्होंने झगड़ा किया और चले गए। तो ये चाहते हैं कि कोई उनकी शादी दूसरी जगह हो जाए, कि उसके लिए कोई वजीफ़ा हो या दुआ हो तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही गमनाक इत्तला दी है। मुसलमानों में मोहब्बत और प्यार होना चाहिए और जो भी कदम उठाएं वो सोच समझकर उठाना चाहिए। जब रिश्ता तय हो चुका था और आज उनका अक़्द होने वाला था तो ज़ाहिर है उसको सरअंजाम पाना चाहिए था। पता नहीं क्या वजूहात हैं, रिश्ता टूटने में लड़के वाले ज़िम्मेदार हैं या लड़की वाले ज़िम्मेदार हैं, वो तो वो जानेंगे और अल्लाह जानेगा, हमको इसका पता नहीं है। बहरहाल हम बताते हैं कि मुस्लिम समाज में इस वक्त जो बिगाड़ और फसाद है वो बहुत ज़्यादा नागुफ्तगी है। उसकी वजह अना है, अनानियत है, माल की तमा है, हिर्स है और बेजा इसराफ हमारी ज़िंदगी में आ गया है। सारे अवामिल मिलकर हमारी ज़िंदगी को फितने की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे में आपने दुआ की ख्वाहिश की, हम दुआ बताते हैं। आपके भाई को चाहिए कि शरई अहकाम की इत्तिबा और पैरवी करें और शादी ब्याह के मामले में दीनदारी को देखें, तक़वा और परहेज़गारी को देखें और इंशाअल्लाह अगर वो तक़वा और परहेज़गारी दीनदारी को देखेंगे तो ऐसी सूरत हाल इंशाअल्लाह कभी वाक़ई नहीं होगी और ऐसे नागुफ्तगी हालात का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप पाबंद शरीयत बन जाइए, आप भी आपका सारा घराना पाबंद शरा बने, सुन्नतों की इत्तिबा और पैरवी होने लगे और इस दुआ का अहतमाम कीजिए, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसका तर्जुमा यह है, ऐ मेरे रब, जो कुछ आप खैर से मेरे पास मुझको भेजेंगे, मुझे अता फरमाएंगे, मुझ पर नाजिल करेंगे, मौला मैं उसका ज़्यादा मुहताज हूँ। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से आपका जो मसला है वह हल होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और शकीला साहिबा ने अलीगढ़ से सवाल किए थे कि पीतल की चूड़ियाँ पहनकर क्या नमाज हो सकती है? लोहा, तांबा, पीतल ये ऐसी धातें हैं जिनके पहनने को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब रहा ख़वातीन, उनको ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। उनको सोना पहनना भी जायज़ है, चांदी पहनना चाहें तो इसकी भी शरन इजाज़त है। लेकिन अगर तांबे, पीतल वगैरह की कोई चीज़ें बतौर ज़ेवर के इस्तेमाल करना चाहती हों तो उस पर सोने का या चांदी का पानी पिला दिया जाए तो फिर वो बात ख़त्म हो जाती है और फिर वैसी चूड़ियाँ पहनकर नमाज भी अदा की जा सकती है। अब रहा नमाज में ये चीज़ें माने नहीं है, नमाज तो हो जाएगी लेकिन ज़िंदगी के तमाम शोबे में जब भी आप ज़िंदगी गुजारेंगे रास्त तौर पर पीतल तांबा पहनने से एहतराज़ करें। अलबत्ता उस पर सोने या चांदी की मुलम्मा कारी कर ली जाए तो फिर उसकी क़बाहत दूर हो जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। उनके और दीगर सवाल थे कि पर्दे का क्या हुक्म है ख़वातीन के लिए? इस्लाम में पर्दा फ़र्ज़ है। अब इसमें इख्तिलाफ है कि आया चेहरे का पर्दा है या नहीं है, लेकिन कुरान पाक की आयत जो सूरह अहज़ाब में आई है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, ये जिल्बाब के लफ्ज़ से इस्तिफ़ादा करते हुए फ़ुक़हा उम्मत का, माहिरीन क़ानून इस्लामी का बहुत बड़ा तबका इस बात का कायल है कि ख़वातीन के चेहरे का पर्दा भी ज़रूरी है।
इसलिए मुस्लिम ख़वातीन को चाहिए कि वो हिजाब और पर्दे का ज़रूर अहतमाम करें। और दरअसल हिजाब और पर्दे के हुक्म में ख़वातीन की हिफाजत का अल्लाह ने सामान रखा है। जी मुफ्ती साहब, श्रीनगर से भाई ने सवाल किया था कि जैसे उन्होंने देखा है खाने काबा में नमाज जनाजा के वक्त जो है वो एक ही तरफ सलाम फिर के चले जाते हैं, और फिर दूसरा सवाल उनका था कि लोग जो है फ़र्ज़ पढ़ के ही फ़ौरन चले जाते हैं। नमाज जनाजा का जो तरीक़ा अहादीस पाक में आया है उसमें बाज़ रिवायात में दो तरफ सलाम फेरने का भी ज़िक्र है, और बाज़ रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ही तरफ सलाम फेरने का ज़िक्र है। आम तौर पर जो हम्बली मसलक हैं वो एक तरफ सलाम फेरने वाली अहादीस पर अमल पैरा हैं। अहनाफ दो तरफ सलाम फेरने वाली रिवायात पर अमल करते हैं। तो इसमें कोई इख्तिलाफ़ की बात नहीं। जब हम मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंच जाएं और वहां नमाज जनाजा अदा हो रही हो, इमाम साहब एक की तरफ सलाम फेर रहे हों तो हम भी एक की तरफ सलाम फेरें, इंशाअल्लाह इस जनाजे की नमाज अदा हो जाएगी। ये जो सलाम एक तरफ फेरने दो तरफ फेरने का इख्तिलाफ़ है, ये कोई बुनियादी इख्तिलाफ़ नहीं है और इस्लाम के बुनियादी अहकाम का इख्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि ये फ़ुरूई मसाइल का इख्तिलाफ़ है। ये दरअसल इस्लाम की जो फितरत है उसमें जो लचक अल्लाह ने रखी है उसमें तवस्सु और गुंजाइश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारी गुंजाइशों का रास्ता उम्मत मुस्लिमा के लिए फराहम फरमा दिया है। अब हम अगर यहाँ नमाज़ पढ़ते हों, यहाँ के इमाम साहब ने दो तरफ सलाम फेरा हो तो हम यहाँ जब इख्तिदा करेंगे दो तरफ सलाम फेर लें। हरम पाक में नमाज अदा करने का मौका हो जनाजे की और एक तरफ सलाम फेरा जा रहा हो तो हम एक तरफ सलाम फेरें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह जनाजे की नमाज न हो पाए। अब रहा आपका एक सवाल ये है कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद लोग उठकर चले जाते हैं। बात दरअसल ये है कि नमाज के बाद के जो अज़कार हैं वो अहादीस पाक में वारिद हैं। इसमें भी अइम्मा और मुहक्किकीन का इख्तिलाफ़ है कि आया हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर इस मौके पर दुआएं की हैं, अस्कार का विर्द किया है या नहीं किया है। बाज़ों की राय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए बगैर अज़कार का इनफरादी तौर पर विर्द किया है। बाज़ों की राय यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर बतौर दुआ की अस्कार का विर्द किया है। अस्कार क्या है उसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, तरीक़ेकार में इख्तिलाफ़ है, रिवायात अहादीस में इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर। इसलिए वहाँ इमाम साहब भी और दीगर जो वहाँ के बाशिंदे हैं वो सब के सब इनफरादी तौर पर फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेने के बाद वो सारे अज़कार का विर्द करते हैं जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, और हम भी उनका विर्द करते हैं, लेकिन सुनन पढ़ने के बाद उसका विर्द करने के हम लोग बहरहाल तहक़ीक़ को कबूल करते हैं। ये कोई निज़ाई मसला ऐसा नहीं है कि जिसको बुनियादी इख्तिलाफ़ कहा जाए, ये फ़ुरूई इख्तिलाफ़ है, हमको इस उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। जी बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से, इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मगरूर वाशिम से अशफाक ताजी। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि ये जो आमिल लोग रहते हैं, आमिल लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे कब्जे में मोक्कल है, ये है, इलाज कर दिया जादू शहर का जिन्नात का। जी तो मेरा आपसे हजरत से ये सवाल है कि क्या वाकई में मोक्कल कब्जे में आते हैं, इतना बताइए जरा। तो नहीं, सवाल तो आप सही पूछिए, सवाल खुल के पूछिए, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? आमिर लोग जो बोलते हैं कि हमने मोक्कल कब्जे में किए या हमारे कब्जे में मोक्कल है, मोक्कल हमको बताते हैं कि क्या किया जाए, जादू किया जाए या जिन्नात किया जाए, जिन्नात का असर है जी। तो क्या वाकई जो है तो उनके कब्जे में मोक्कल होते हैं? चलिए ठीक है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल बताइए। जी मुफ्ती साहब। जी आपने इनका सवाल सुना, क्या जवाब देना चाहेंगे? आपने आमिलों का जिक्र किया है कि वो जिनों को अपना ताबे बनाए रखते हैं और इस तरह का वो दावा करते हैं। ये बात सही है कि बाज़ औराद के वजह से अगर वो विर्द कर लिया जाए तादाद के मुताबिक तो बाज़ जिन बतौर मौकिल के उनके ताबे ज़रूर हो जाते हैं,
لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، جیسے انسان دنیا میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کذب بیانی کا ان کی طرف سے اظہار ہوتے رہتا ہے، اسی طرح موکل جو جن ہوتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ بات بیان کریں، وہ جھوٹی بات بھی بیان کر سکتے ہیں، وہ بھی چونکہ مخلوق ہیں وہ کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، اس لیے عاملوں کی بات پہ پوری طرح یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یقین صرف اور صرف وہی الہی پر کیا جا سکتا ہے، عاملوں اور جنوں کی بات پر کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ یہ عامل اور عملیات کا جو چکر ہے یہ شیطانی چکر ہے، اس وقت یہ سماج کا بہت بڑا ناسور ہے، جس کی وجہ سے گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور دلوں میں نفرتوں کی دیواریں اس کی وجہ سے کھڑی ہو رہی ہیں۔ سارے انسانوں کو خاص طور پر اور عمومی طور پر سارے انسانوں کو خاص طور پر ایمان والوں کو اللہ پر توکل و بھروسہ کرنا چاہیے اور ایسے عاملوں کی چکر میں پڑنے سے سخت اجتناب کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ سب شیطان کے نمائندے ہیں، ان کے چنگل میں ایک مرتبہ انسان پھنس جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں وہ کس دلدل میں پہنچ جاتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہزاروں واقعات سامنے آتے ہیں، پھر بھی ہم ہیں کہ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہم کسی مصیبت کا شکار ہیں، روحانی اعتبار سے کچھ مصائب و آلام درپیش ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض ہے کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں، اللہ کا ذکر کریں، اور احادیث پاک میں وارد ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے وہاں جن و شیاطین اگر قابض بھی ہوں تو وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں اور وہ ستانا بھی تنگ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی ظاہر ہے یہ معوذتین بہت تیر بہدف ہیں، یہ بھی ایسے مسائل کے شکار لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑا سمجھیے آزمودہ اور سمجھیے فائدہ مند سود مند سمجھیے اس کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑا سرمایہ رکھا ہے، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ویسے رقیہ شرعیہ احادیث پاک میں بہت سی دعائیں وارد ہے جو خلق خدا کے غضب سے حفاظت کے لیے بطور حصار کے بیان کی گئی ہیں۔ خلق خدا میں خواہ انسان ہوں کہ جن ہوں، ان سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے رقیہ شرعیہ کے ورد بھی بہت زیادہ مفید اور مناسب ہے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی فرمایا تھا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ عامل کے پاس نہ جائیں بلکہ عالموں کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے اپنے مسئلے مسائل کا حل کروائیں۔ جزاک اللہ، آپ نے بات یاد رکھی اور بر وقت آپ نے بیان فرمایا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم بریک کے بعد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ کرمک اللہ۔ اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں عبدالسید کریم بول رہا ہوں چھندواڑے سے۔ جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے صاحب۔ جی 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 بالکل بند ہے حضرت۔ میں ایک پوتا ہے قریب 6 سال کا ہے، وہ 5 سال کا، جی KG 2 میں پڑھ رہا ہے 2 سال سے، اور سید محمد علم نام ہے ان کا۔ پوتا جو ہے 5 سال کا ہے، 5 سال کے ہیں، KG 2 میں پڑھ رہے ہیں، جی KG 2 میں، لیکن 2 سال سے مسلسل جب ان کو اسکول تیار کیا جاتا ہے تو روتے رہتے ہیں، جاتے ضرور ان کو بھجواتے ہیں ہم، لیکن وہ ذہن ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ کوئی دعا بتائیے جس میں وہ ان کا رونا بند ہو جائے، پڑھائی میں بہت اچھے ہیں وہ۔ شاید نام کا اثر تو نہیں ہے، سید محمد علم نام ہے ان کا، الحمد سید محمد الحمد الحمد۔ یہ نام کا اثر تو نہیں ہے کہیں، نام تو چینج کرنا پڑے گا۔ نام تو بہت پیارا ہے، مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے۔ بہت بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بنگلور سے بات کریں سر۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بنگلور۔ جی سوال پوچھیے۔ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، شب جمعہ یعنی کہ جمعرات جمعہ کی بیچ سے یا جمعہ کی شام میں پوچھنا، اور سمجھا کیا سوال ہے؟ سمجھ گیا، چلیے کیا سوال؟ سمجھ گیا، چلیے۔ شب جمعہ بولتے نہیں،
जी हाँ। जुम्मा की यानी कि जुमेरात जुम्मा के बीच या जुम्मा की रात बाद पे? वाले सब पूछ रहे हैं। हाँ बोलना, सबसे मुक़द्दस दरूद कौन सा पढ़ सकते हैं हजरत से पूछ? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं शेख अल्ताफ बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी शेख अल्ताफ साहब, सवाल पूछिए। जी मेरा एक बेटा है, 1 साल का बेटा है, उनका नाम तैमूर मैंने रखा है। जी मुफ्ती साहब से जानना चाहता हूँ कि ये नाम सही है, अगर सही है तो इसका मतलब और सितार मुझे जानना था, अगर क्या? नहीं तो इनके लिए कोई अच्छा सा नाम, अगर ये सही नहीं है। तैमूर नाम है ना? जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बारामा कश्मीर से अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल 3 है। जी पहला सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैंने शादी की थी 1996 में। जी हेलो, आवाज़ आ रही? जी सवाल पूछिए अपना। 1996 में आपकी शादी हुई? जी उसके साथ 1 साल बाद मुझे एक बच्ची उस औरत से पैदा हुई। जी हेलो, तो 2 साल के बाद एक बच्चा उसको और था पेट में, तो उसने मुझे मजबूर किया, बीवी ने, कि ये बच्चे गिरा देंगे। हेलो जी जी तो डॉक्टर की इंजेक्शन दिया, उसका बच्चा गिर गया, क्या इसका मुझे कोई गुनाह है कि नहीं? उसके बाद वो बीवी मुझे इंतकाल करेगी, उसका मेहर मुझे 40,000 बकाया दे रहा। तो तीसरा सवाल है मेरा ये कि जो आजकल मेरी बीवी है, इसको शादी को 3 साल हुई लेकिन कोई बच्चा नहीं है, कोई दुआ इसके लिए मुझे बताएं। तो आपने उनको तलाक देके दूसरी शादी कर ली? हाँ, दूसरी शादी की थी, वो छोड़ दी थी, तीसरी शादी की है आज। जी नहीं, जो पहली बीवी थी वो इंतकाल कर गई थी। अच्छा, इंतकाल कर गई। जी मेहर भी 40,000 बकाया रहा, जो बख्शाया नहीं गया वो बकाया रहा। आप महर अदा नहीं कर पाए उनका? जी मेरे सवाल आपको समझ आए? आप महर नहीं अदा कर पाए 40,000 ना? हाँ, मेहर भी अदा नहीं कर पाए, और जो पहला गुनाह किया, जो बच्चा गिराया गया, क्या उसका गुनाह उस मेरी बीवी को है कि मुझे भी है? जी जी जी। और उसके बाद आपने दूसरी शादी करी, फिर क्या हुआ? अब तीसरी शादी की है, दूसरी शादी छोड़ दी थी दूसरी बीवी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी जी अब्दुल करीम साहब ने सवाल किया था कि इनका जो पोता है 5 साल का है, LKG में पढ़ता है, स्कूल जाते वक्त वो रोता है, हालांकि पढ़ाई में वो तेज़ है, होशियार है, तो वो स्कूल जाने लगे, उसके लिए कोई दुआ हो या कोई मशवरा हो तो बता दें, वजीफ़ा वगैरह। इस्लामी नुक्ता नज़र ये है कि 6 साल से पहले बच्चों पर तालीम का, सीखने का और मदरसा जाने जैसे मामले का बोझ न रखा जाए। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जब बच्चे 7 साल के हो जाते हैं, 6 साल पूरे हो जाएं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उनको नमाज के लिए तरगीब दी जाए। इस हदीस पाक से इस्तिफ़ादा करते हुए बहुत से शुर्राह हदीस इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 6 साल से पहले बच्चे पर किसी तरह का कोई बोझ न डाला जाए, और जब बच्चों पर बोझ डाला जाता है इस तरह का, तो नफ्सियाती तौर पर उन पर बहुत से हालात पैदा हो जाते हैं और नफ्सियाती अमराज का शिकार हो सकते हैं, इसलिए इसका लिहाज रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मगरबी दुनिया के तमाम मुहक्किक स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 6 साल से पहले बच्चे को मदरसे में शरीक न किया जाए। तो इस तनाजुर में आपने अपने पोते का जिक्र किया है, तो वो भी 5 साल का है। मैं समझता हूँ कि वो बच्चा इस वक्त अभी तालीम का बोझ सहारने के काबिल नहीं है, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए खेलने कूदने की और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने की। बच्चे को किसी चीज़ का पाबंद कर दिया जाए, ज़ाहिर है यह बच्चों के जहनों पे इस वक्त बोझ है, और यह बोझ सारा माशरा मिलकर बच्चों पर लाद रहा है। इसकी बड़े पैमाने पर इस्लाह की ज़रूरत है। वैसे आपका बच्चा 5 साल का है, 1 आध साल के बाद ज़रूर अल्लाह की राह से यकीन है कि वो दिलचस्पी से पढ़ना शुरू करेगा। ताहम आप अगर चाहते हैं कि बच्चे का इल्म ज़ौक़ बढ़ जाए, तो आप उसके लिए सूरह फातिहा 7 मरतबा विर्द करें, सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3 मरतबा विर्द करके इसी नीयत से बच्चे पर दम करें और पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह आप इफाक़ा महसूस करेंगे। वैसे
सूरह ताहा की दूसरे रुकू की इब्तदाई आयात हैं और बच्चे को याद करवा दी जाएं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इंशाअल्लाह इससे भी बच्चे की दिलचस्पी पढ़ने में बढ़ जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और जैसा कि अभी 5 साल का इनका पोता है, तो मतलब अगर जाता है स्कूल हंसी खुशी तो ठीक है, जैसा कि आपने फरमाया, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती ना की जाए, क्योंकि अभी होना ये चाहिए कि बच्चों को जब शरीक किया गया है, जिस दिन बच्चे खुशी से जाएं ठीक है, न जाएं तो उन पर जबर न किया जाए। जी हाँ। और दूसरी चीज़ मैं एक और मिसाल देता हुआ चलूँगा अपने बच्चे की, कि जैसे मैंने क्या करा, उनको इस तरह की तरबियत दी ताकि वो बच्चे जो है स्कूल जाने से घबराएं नहीं, रोएं नहीं। तो मैं जब भी कोई शैतानी करते हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर शैतानी करी तो आइंदा आपको स्कूल नहीं भेजेंगे। तो उनके जहन में क्या हुआ, उनको ये लगा कि स्कूल जाना अच्छी बात है, तो इस वजह से स्कूल जाते वक्त रोते भी नहीं है। माशाअल्लाह। और है मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात हैं, हर एक अपने अपने हाल और माहौल और समाज के एतबार से, समाजी नुक्ते नज़र से बच्चों के समझिए कि उनके अंदर कैसे इल्म का ज़ौक़ पैदा किया जाए, तालीम की रग़बत पैदा की जाए, हर एक शख्स अपने तौर पर उसको इख्तियार कर सकता है। जी। और मुफ्ती साहब, शेख अल्ताफ़ साहब ने हैदराबाद से सवाल किया था कि इनका 1 साल का इनका बेटा है, उसका नाम तैमूर रखा है, नाम कैसा है रहेगा? वैसे तो हम अपने प्रोग्राम में नामों के माने बताने से एतराज़ करते हैं, ताहम तैमूर अच्छा नाम है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब रहा, इस्लाम ने अब्दियत के साथ नाम रखने को पसंदीदा करार दिया है, इसके बगैर नाम रखे जाए तो इस्लाम ने मना नहीं किया है। अगर हम जैसे अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, अब्दुल मुकीत और अब्दुल हलीम, अब्दुल रहीम रखते हैं तो ये ज़्यादा पसंदीदा है। लेकिन अगर इसके सिवा भी हमने कोई नाम रख लिए जैसे आपने रखा है तो इसमें कोई शरन हर्ज की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि माना ऐसे होना चाहिए जिसके माना अच्छे हों। जी। और नाम ऐसा होना चाहिए जिसके माना अच्छे हों। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मोहतरमा ने बेंगलोर से सवाल किया था शब जुमा के सिलसिले में। हमारी मोहतरमा बहन ने सवाल किया है कि शब जुमा क्या जुमा से पहले वाली शब होती है या जुमा गुजर जाने के बाद वाली शब होती है? हकीकत में शब जुमा वही है जो जुमा का दिन आने से पहले जुमेरात और जुमा के दरमियान की शब है। जुमेरात और जुमा की दरमियानी जो शब है वो शब जुमा कहलाती है, चूँकि इस्लामी नुक्ते नज़र से दिन की तब्दीली और तारीख़ी तब्दीली गुरूब आफ्ताब से होती है। जैसे ही जुमेरात का आफ्ताब गुरूब हो गया उस दिन शब ही से शब जुमा शुरू हो चुकी है। लेकिन जुमा की खुसूसी फजीलत की बुनियाद पर बाज़ उलमा ने जैसे जुमा के दिन से पहले वाली शब जुमा करार दी है, इसी तरह जुमा के बाद वाली शब को भी शब जुमा में शुमार किया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो जुमा की फजीलत है वो जुमा से पहले वाली शब को भी हासिल है, जुमा का दिन गुजरने के बाद वाली शब को भी हासिल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त हो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम शरीयत के आईने में।